Hi everyone, good morning. I am Rakhi, your universal best friend forever. Welcome to my channel. Thank you so much for listening. Thank you so much for all the subscribers, viewers and comments I have received till date. और आज की जो ये वीडियो है, मैंने आज बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि मैं आज कोई वीडियो बनाऊंगी, बट आई डोंट नो आज क्या हुआ एंड मैं इतने फोर्सफुली मेरे मन में ये इंट्यूशन आया कि आज मुझे ये बात कहनी ही चाहिए। एंड जैसे कि मेरी एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप ग्रैटिट्यूड लर्निंग नाम से। इस ग्रुप में मैं लोगों को खुश रहना सिखाती हूँ एंड ग्रेजुअली मैं उन लोग से पूछते रहती हूँ कि कैसा लग रहा है, आप कैसे हो। अब मुझे कुछ दिन से ये नोटिस हो रहा है कि अनटिल एंड अनलेस मैं उन लोगों को मतलब सेशंस नहीं लूँ या उन लोगों को कुछ बोलूँ नहीं, तो उन लोग के मन में अंदर से ये हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग है वो नहीं आती है। एंड वो लोग मुझे पूछते हैं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट तो आपके साथ भी होता होगा। मैं बोली यस, कॉन्ट्रास्ट तो मेरे साथ भी होता है, तो आप खुश कैसे रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें बतानी चाहिए जिससे शायद उन लोगों को पता चल सके कि वाई आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। सो डियर एवरीवन, माय नेम इज़ राखी शर्मा। मेरा जन्म मुंबई में हुआ 9 मई 1991 को एंड आई एम द थर्ड चाइल्ड। मेरे सबसे बड़े एक भाई हैं, उसके बाद मेरी एक सिस्टर है एंड देन आई एम। एंड आई रिमेंबर कि माई मदर यूज टू से कि जब मेरी जन्म होने वाली थी, लाइक व्हेन शी कंसीव्ड मी, शी वॉज नॉट इन द कंडीशंस टू लाइक नर्चर व्हेन आई वॉज इन हर वोम। मतलब उनके पास उतनी फाइनेंसेस नहीं थी कि वो मुझे मतलब जन्म दे सके। एंड माई फादर वॉज नॉट देयर विद अस। ही वॉज लाइक उनको लगता था कि हम शायद तीन बच्चों को नहीं पाल कर पाएंगे। तो मेरे पापा की एक रिक्वेस्ट थी कि लेट्स गो बैक टू आवर विलेज। एंड मेरी मम्मी जब मुंबई आई थी मेरे जन्म से 2 साल पहले, एंड शी प्रॉमिस्ड हर सेल्फ दैट I am going Mumbai and the day I will get successful, I will be coming back to my village, like that. So after some days, my father realized that it is quite difficult to survive in Mumbai. Let's go back. And मम्मी को फिर इंसल्ट फील हुआ था कि अगर हम दोबारा चले गए तो गाँव वाले क्या बोलेंगे एंड ऑल दैट। सो शी सेड कि नो, आई वुड प्रिफर टू स्टे हियर एंड शी यूज टू स्टे विथ वन ऑफ आवर फैमिली मेम्बर। एंड लेटर ऑन जब मेरे पापा चले गए एंड लाइक इट वॉज द थर्ड मंथ आई गेस, शी कंसीव्ड मी and she informed this thing with a family member and with my father too, and he said that I am out of this and please abort this child because I cannot do this thing. And my mother was saying yeah okay, if हम लोग जब 2 बच्चे की सर्वाइवल हमें बहुत दिक्कत हो रही है तो why third. So she did everything she could to abort me, but मुझे आना ही था I guess. So she couldn't, like I survived. And after 3 to 4 months, doctor said that you have to take a certain procedure to wash off the child and it will take a very good amount. So even though she was not having that amount to go ahead with that procedure, and my father was too angry with that why you have done such thing and क्यों तुमने right टाइम पे मतलब abort नहीं किया. And he left back us and he went to village. And then she was very alone, and yes, she was residing with one of our family member. But the day she was like the day labor pain, the day she faced that thing, and she went to the government hospital in Mumbai itself. And the moment I delivered, the messages came from our family members that if the girl child has delivered, so no need to come back. And the moment you get discharged from the hospital, right away you need to book your tickets and you need to go to your village. And she was like this is ridiculous, like how can I expect this thing from my family members, they are not ready to like help me. Then she was just crying the day I born, as she has tell us. And after some time my brother went to the hospital and he was so much happy looking at me that yes, one more sister is there with us. He was not knowing about all that situation what my mother was facing. But the moment she saw that my brother has a very beautiful smile on his face, that yes, we do have one more sister,
all her that negative and pains released out, and she decided to stay in Mumbai itself. And she decided, I don't know what she has to do, and she came back to the family member asking for the help of some days. And she was being said to stay out from the same day itself. We don't know that what kid and how old the kid is you are holding on your hands, but you have to leave that kid, like we have to leave our family and अपने लाइफ को अपने देखो अब तुमको क्या करना है. बट वी कैन नॉट like cooperate. We can help you out to go back to the village, but I cannot allow you to stay with us. And she was so like what we say, आप शायद समझ रहे होंगे कि उनको जब ये बोला गया आफ्टर द डिलीवरी डिस्चार्ज 3 to 4 डेज़ के बाद उनकी डिस्चार्ज हुई, एंड मुझे वो गोद में ली हुई है, एक तरफ मेरे भाई एक तरफ मेरी बहन है, एंड उनको ये बोला जा रहा है कि लीव ऐसे. एंड शी जस्ट केम आउट ऑफ दैट हाउस, stepped out from some of her stuffs like clothes and something. She was not having a single penny in her hand, no husband, and 3 responsibilities, one on hand and 2 on other hands. She just sat on the road, a street, thinking of what to do next. I don't know, but I will not go village back because I came here to do something and I am not going back. So the same day people used to know my mother. She is a very good like energy. So one of them, he was from Muslim religion. He was residing in our society itself. He just asked my mom what is the problem, and she said कि I don't know what to do. मुझे कहाँ जाना नहीं जाना मुझे नहीं पता. मुझे गाँव जाने के लिए कहा जा रहा है. I don't want to go and I want to survive in Mumbai and I want to take care of my child. मैं इन लोगों को कुछ बनाना चाहती हूँ. Like I have a certain goals and wishes, but I don't have a single penny to do anything. Then he said कि okay, हमारे घर चलो and think हम लोग देखते क्या होगा, because अकेले तुम ऐसे कैसे रह सकती हो ना. And he took us to his house and उनकी अच्छी खासी फैमिली थी, उनके वाइफ बच्चे सब लोग बहुत अच्छे थे. एंड आई स्टिल अप्रिशिएट दैट अंकल. और उनका बेटा रमज़ान भाई, ही वॉज अनदर ब्रदर लाइक माई ब्रदर, and he's still in touch with me, and I feel so grateful that somewhere his shelter helped us to live in the shelter where I am living now. So and इन सम डेज़ कुछ दिन हम लोग वैसे ही उन्हीं की इधर, शायद मम्मी बोली कि हम लोगों को रखा जा रहा था. एंड आफ्टर वीक उन्होंने मम्मी को कोई जॉब दिलाई इन कंपनी, लाइक टू वर्क ऑन समथिंग लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग लाइक दैट. एंड आई वॉज सो स्मॉल एंड माई मदर वॉज एक्सपेक्टिंग टू कॉल हर मदर टू नर्चर, मतलब हमारी ध्यान रखने के लिए. बट बात ये थी कि रहेंगे कहाँ. एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस देयर वॉज अ स्पेस, ओपन स्पेस किसी का था वो. एंड उन लोगों ने कहा कि कैन वी जस्ट हैव अ टेंट लाइक दिस, एंड हम यहाँ पे 2-3 जन यहाँ पे फैमिली रहना चाहते तो आप अलाउ करोगे. तो उन लोगों ने बोला ठीक है. दैन दे पीपल्स अरेंज सम लाइक स्टिक ऑफ वुड्स एंड दे लाइक मेड अ बाउंड्री लाइक अ फेंस, है ना. और उसके अंदर जैसे तैसे दे डिड दैट एवरीथिंग टू सर्वाइव एंड टू स्टे. एंड वो होने के बाद माई ग्रैंड मदर वॉज बिन कॉल्ड फ्रॉम आर विलेज. वो आई एंड वी वर लिविंग विथ हर. माई मदर यूज टू गो फॉर अ वर्क, एंड आफ्टर सम टाइम्स शी रियलाइज दैट इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू, मतलब इतने सारे बच्चों का नर्चर करना बहुत मुश्किल की बात है. ग्रेजुअली इट बिकेम 2 years, वी सर्वाइव्ड लाइक दैट. एंड शी थॉट दैट ग्रैंड मतलब नानी भी है, मैं भी हूँ, और कैसे हो पाएगा. So she like sent me back to village, like मेरी नानी घर, not my दादी घर, नानी घर, with my grandmother कि नानी के साथ तुम जाओ. I don't know all that things, but she says and my brother says like that कि तुम जाओ and तुम वहाँ रहोगे, and जब हम लोग का स्थिति थोड़ा ठीक होगा we will take, हम तुमको दोबारा बुला लेंगे. एंड आई वेंट बैक इन विलेज. आई समथिंग मुझे कुछ याद है मैं कैसे वहाँ पे बकरियों के साथ खेलती थी. दैट वॉज धनबाद एक्चुअली. बकरियों के साथ खेलना, और फिर नानी मुझे बकरियों का दूध पिलाती थी एंड वो मेरी चोटी बनाती थी. समटाइम्स शी यूज टू मेक माई मेकअप्स एंड ऑल. एंड आफ्टर समटाइम्स लाइक it was almost I guess 2 years I was in village with no mom, no brother and no sister. I even forgot them that they are my family members. And somebody used to come Mumbai to meet
अदर फैमिलीज। एंड मम्मी ने फिर उनको मैसेज भेजाया कि मम्मी को बोल देना राखी को लेके आ जाएगी मुंबई ऐसे करके, बिकॉज आई थिंक नाउ आई एम कैपेबल ऑफ उसको मैं संभाल पाऊँगी जैसे। देन शी टुक मी बैक और मेरी नानी आई एंड तो गांव में तो सब कुछ मतलब इजीली मतलब एक्सेस हो जाता है, खेती एंड ऑल दैट था। तो मैं जब वहाँ पर आई तो मैंने देखा कि मतलब खाने पीने का बहुत देखती थी कि बहुत बेसिक खाना रहता था मेरे घर का। एंड मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरी बहन मतलब वो सबसे बहुत सेटिस्फाइड रहते थे जो खाना वो लोग खा रहे थे। एंड दैट वॉज द फर्स्ट डे। इन द इवनिंग एवरीबडी स्लेप्ट एंड जैसे मम्मी मेरे से 2 साल बाद मिली तो शी यूज टू लव मी अलॉट और ये मेरी बेटी एंड ऑल दैट। देन आई सेड कि मम्मी मुझे ना खीर खाने का मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू ईट खीर एंड ऑल दैट। एंड इट वॉज आई गेस around 9 o'clock. Then she was so वो बहुत हर्ट फील कर रही थी कि माई डॉटर हैज़ केम बैक आफ्टर 2 years एंड आई डोंट हैव दैट सच थिंग टू सर्व हर। सो शी सेड कि यस गिव मी सम टाइम आई जस्ट अरेंज। सो वॉट शी डिड यू नो, शी मेड अ रेड टी, ब्लैक टी जिसको हम लोग बोलते हैं, चाय पत्ती चीनी एंड पानी, दैट्स एंड राइस वॉज देयर ऑफ द आफ्टरनून। मेरे नानी ने जो राइस बनाया था दैट वॉज देयर। What she did कि वो राइस में she add that red tea to become sweet, उसको स्वीट मीठा बनाने के लिए, and she gave me. Then I asked her कि ये तो काला काला दिख रहा है, ये कैसा खीर है like that. She said कि actually वो खीर में ना गुड़ डाला हुआ है एंड गुड़ का कलर तो चेंज हो जाता है ना, इसीलिए ऐसा है बेटा, तुम खाओ। एंड आई वॉज नॉट नोइंग दैट इट हैज़ बिन मेड लाइक दैट। एंड आई जस्ट सेड कि हाँ मैंने खीर बनाने के लिए बोला, मेरी मम्मी ने खीर बनाया एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टेस्टी एंड वॉज ओवर एक्साइटेड टू हैव इट। एंड लिटरली आई हैड इट विथ वेरी हैप्पीनेस एंड लाइक विथ लाइक इट वॉज अ डेलिशियस फूड आई एम हैविंग लाइक दैट। एंड द मोमेंट आई डिड आई एम डन विद दैट खीर, दैट सुपर टेस्टी खीर। एंड द मॉर्निंग आई सेड टू माई ब्रदर एंड सिस्टर, ये मैंने कल खीर खाया, मम्मी ने मेरे को खीर खिलाया, आप लोग को नहीं मिला, लाइक दैट द चाइल्ड्स लाइक किड्स जैसे करते हैं भाई बहनों के साथ। एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर वॉज शॉक्ड कि हाँ ये अभी अभी आया एंड शी हैज़ गॉट इट, शी हैज स्टार्टेड गेटिंग एवरीथिंग वॉट एवर शी इज़ आस्किंग, लाइक मदर हैज स्टार्टेड लविंग हर मोर। एंड माई ब्रदर आस्क्ड माई मॉम कि ये क्या है मॉम, दिस इज़ रॉन्ग, मतलब मेरे लिए रख तो देना चाहिए था, हम लोग कितने दिन से खीर नहीं खाए हैं। देन माई मम्मी ने ऐसे भाई को बता दिया कि अरे वो खीर नहीं था, वो रेड टी में मैंने उसको भात में मिला के दे दिया, उसको क्या पता, मैंने उसको बोल दिया गुड़ है। एंड दे वर ओके एंड माई ब्रदर केम बैक एंड ही स्टार्टेड टीजिंग मी कि अरे तेरे को बेवकूफ़ बनाई मम्मी, तेरे को लाल चाय में भात डाल के दे दी, तुमको तो समझ नहीं आया। एंड आई वॉज लाइक एंड आई फॉरगॉट कि हाउ टेस्टी इट वॉज एंड आई वॉज मेरे को फूल बनाया गया। एंड there are certain things to talk a lot, every videos I will share my just like from there to here how I am, and I will let you know. And whenever I have something like breakfast or the lunch or the dinner, there are certain tasty foods and all these things, and I visualize that there was a day where I was not, we were not even having the bowl to keep the food and have, and we were not even having milk to make kheer, we were not even having gas chulha and like that stove and all. Chulha was there in Mumbai itself. We were staying in Mumbai. People used to think from village that we are in Mumbai and we are residing like a luxurious hero, heroine like that. But we know that how we were surviving there. But the thing is that ki I was so happy. Whatever was the situation, whatever I used to wear, I was so happy because मुझे सिखाया गया था from childhood that happiness is in family, like sharing, caring, mastis and all. That is not in the material that you have. And still what happens whenever I have tea, whenever I have food, I feel so grateful that I have this. And that's what I want you all to be in the same state, because I don't know that how was your childhood, आपका पहला कैसे था। हो सकता है आप लोग पहले बहुत लग्जरियस थे, अभी ऐसा कुछ हुआ, या फिर हो सकता है कि आप लोग बचपन से अभी तक बहुत अच्छी लाइफ ही जी रहे हैं। But visualize that peoples that those who are like not getting food, लोग कचरे से खाना खोज के खा रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। So visualize them and think that you are getting easy access to have that food and be grateful. वो gratitude जब आप में आ जाएगा ना अंदर से,
and universe will create a thousand and lakhs reasons to pay more gratitude in your life. एंड आई गेस कि इतना बार तो मैंने सबको समझाया है, शायद वो नॉलेज से अगर आपको नहीं समझ आया, आई गेस मेरी स्टोरी भी इनफ होगी आप लोगों के लिए. एंड इन एवरी स्टोरी आई विल शेयर फ्रॉम दैट रेड टी खीर टू where I am, how I came up to this, and how I am able to speak English. Everything I'm going to share with you all. Thank you so much for listening. I love you.